Hello everyone. So this is the second session of Spicy, and the topics we'll cover in this session are introduction to C language, the syntax, the compiler and interpreter, operators, format specifiers, and then loops, jump statements and conditional statements. Alright. So let's begin with ये बहुत बेसिक थ्योरी है सी लैंग्वेज की. लाइक इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिश्ती in 1969. Then it's reliable, easy to use. You can compile C on any systems, बस C compiler होना चाहिए. Then it has a set of rich set of built-in functions. You will see the built-in functions later on. Then it's efficient, and बहुत सारी languages आपकी C से ही derive हुई हैं. So like C is the building block for many programming languages. This is the basic syntax. Like ये चीज़ें आपके हर C program में होती हैं. So tokens, whatever keywords you use, identifiers, constants, string literals or symbols, all these are tokens. So the number of tokens in this statement, this is a printf statement this is a print statement to print hello world in a C program. So the number of tokens is 5. How? First token is printf, then this bracket is another token, then everything written in this double quote is a single token क्योंकि ये string है. Then this is another token and the semicolon is another token. So we have 5 tokens in all. Semicolon is used to terminate a statement so that the compiler knows कि अब आपकी statement यहाँ पे end हो चुकी है. Then comments are for user references. Like कोई भी चीज़ जो आप चाहते हो आपके कोड में execute ना हो but you wanted to be there for reference कि algorithm क्या use हुआ है or just for writing some content related to the code. So comments are used and compiler आपका comment simply ignore कर देता है. Then we come to identifiers. So identifiers are used to identify a variable, function or any user defined item. इसका naming convention होता है like it has to begin with a letter, uppercase, lowercase, both work. Then underscore is the only special character that you can use while naming an identifier. And then 0 to 9 you can use numbers. In C we cannot use any other special character as an identifier, like we cannot use $, percentage, nothing. C is a case sensitive language, so these 3 words all are treated as different identifiers. Also it is a good hand practice that while naming an identifier you name it in such a way that अगर कोई second person आपका कोड पढ़ रहा है तो he should be able to understand the function of that identifier. Like if you are storing student marks, so you can name the variable as student underscore marks or something like that. Then also identifiers का name you cannot keep too long. However length पे कोई आपका ज़्यादा restriction नहीं है C में. You can keep a long variable, but that is not very efficient because if I name a variable with 100 characters, writing it again and again will reduce the readability of the code. Then keywords are the reserved words which we cannot use as any other constant or variable or identifier because इनका एक प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है लैंग्वेज के लिए. सो इसको हम कोई और यूज़ नहीं कर सकते. देयर आर 37 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, इफ, एल्स, ब्रेक, गो टू, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो टू बिगिन विथ लेट्स सी कंपोनेंट्स ऑफ अ सी प्रोग्राम. ये आपके कमेंट्स है. सो देयर आर 2 ways to write a comment. These are multi-line comments. This is a single line comment. So अगर आपका कमेंट एक ही लाइन में है you can use double slash in the beginning. And if it is a multi-line comment like कोई bullet points है या कुछ है, so you can use slash and star to begin and star and slash to end the comment. Compiler आपका comment simply ignore कर देता है. Then hash include is a preprocessor directive. We'll see what preprocessor directives are in the next slide. stdio.h is your header file. It has some predefined functions. उनकी डेफिनेशंस होती हैं कि printf क्या करता है आपका, या कोई और फंक्शन आप यूज़ करो सो वो फंक्शन करता क्या है. सो उसकी डेफिनेशन इन हेडर फाइल्स में होती है. देन हैश डिफाइन इज अगेन अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. इसकी फंक्शनैलिटी ये होती है दैट इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट. सो मैसेज इज़ माई कांस्टेंट एंड हेलो इज़ माई वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट. इंट इज़ द रिटर्न टाइप एंड मेन इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन जो जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा मेन फंक्शन को कॉल करता है एंड देन इट बिगिंस इट्स एग्जीक्यूशन. दिस इज कर्ली ब्रेसेस आर यूज्ड फॉर मार्किंग बिगनिंग एंड एंड ऑफ अ कोड ब्लॉक. नाउ सी में इंडेंटेशन का एज सच कोई इशू नहीं होता है.
सो वी यूज़ कोड ब्लॉक्स, दिस कर्ली ब्रेसेस, सो दैट कंपाइलर को पता हो कि आपका कोड स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है एंड ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, आपका फंक्शन कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं ख़त्म हो रही है, लूप्स के लिए यूज़ होता है. सो कोड ब्लॉक्स आर इम्पॉर्टेंट. इंडेंटेशन एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है सी में, बट प्रॉपर इंडेंटेशन से आपकी कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. printf is a function to print a statement. I want to print the statement, so I have included it in double quotes, then semicolon or terminator, then printf message, again a print statement. Return 0 is the termination statement, like it ends the main function and returns the value 0. So इसको execute करके देखते हैं. So the editor I am using is VS Code, or this is the IDE. So IDE and text editor are मतलब फंक्शनैलिटी का डिफरेंस है. दैट IDE में आपके एक तो हाईलाइट हो जाता है थोड़ा, देन और भी फंक्शनैलिटी होती है एज यू गेट टू लर्न द लैंग्वेज. इनबिल्ट टर्मिनल होता है VS कोड में. देन आपको ये सजेशंस भी दे देता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई राइट हियर अ printf, सो इट विल गिव मी सजेशंस लाइक दिस. तो थोड़ा टाइपिंग का टाइम बच जाता है. एंड और भी फंक्शंस होते हैं लैंग्वेज टू लैंग्वेज, लाइक HTML के लिए इसके पास कुछ फंक्शंस हैं, कुछ CSS, देन पाइथन के लिए भी कुछ है. सो IDEs आर मोर कन्वीनियंट ऑप्शन. इंडेंटेशन खुद हो जाती है, लाइक इफ आई ओपन अ कोड ब्लॉक, सो क्लोजिंग वाला अपने आप आ जाएगा, देन अपने आप ये टैब स्पेस आ जाएगा. सो दिस इज़ लाइक एन ईजी वे टू राइट योर कोड्स. नॉर्मल नोटपैड और नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर यू कैन ऑल्सो यूज, नथिंग हार्ड एंड फास्ट. सो ये हमारा बेसिक सी प्रोग्राम है. सी ये सिंगल लाइन कमेंट था, आई हैव यूज्ड डबल स्लैश. नाउ व्हाट इफ दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट. ये कमेंट मेरा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. या तो मैं हर लाइन के स्टार्टिंग में डबल स्लैश लगा देती, ऑलराइट, बट टाइम टेकिंग है. सो व्हाट आई कैन डू इज, मैंने यहाँ पे स्लैश स्टार किया एंड स्टार स्लैश कर दिया, एंड दिस इज माई मल्टी लाइन कमेंट. मल्टी लाइन कमेंट एक लाइन का भी हो सकता है. then this I have already explained. Now hash include str.h, this is your preprocessor directive, this is your header file. Preprocessor directive and इसके syntax के हिसाब से this is the constant and this is the value. int main, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा मेन फंक्शन कॉल करता है, इसलिए हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता ही होता है. int is the return type, void भी होता है एक रिटर्न टाइप. we'll see that in coming program. then printf and return 0. yes, ये \n एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता है. एंड अगर okay, so let's see what happens when we compile. so I'm using GCC compiler. so the syntax to compile a program is gcc filename.c. so my file is new.c, so I've used gcc filename.c, and to execute it I have to write ./a.out. सो दिस इज़ हेलो वर्ल्ड. अब हेलो वर्ल्ड मेरा डायरेक्टली प्रिंट हुआ एंड एक न्यू लाइन थी, तो अब न्यू लाइन पे आ गया कर्सर, ऑलराइट. उसके बाद हेलो कैसे प्रिंट हुआ. हैश डिफाइन का काम ये होता है कि वो इस कांस्टेंट की जितनी भी अकरेंसेस हैं प्रोग्राम में जितनी बार भी ये कांस्टेंट यूज़ हुआ है, कंपाइलेशन के टाइम पे वहाँ पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देगा. सो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे printf हेलो कर दिया एंड हेंस ये हेलो प्रिंट हो गया. अच्छा, स्पेस देनी है, सो लाइक यह \n है या सिंगल स्पेस है. व्हाट इफ मुझे टैब स्पेस देनी है, तो \t इज यूज्ड फॉर टैब स्पेस. एंड इफ आई कंपाइल इट अगेन, whenever you make any changes you have to compile the program again. सी अब यहाँ पे टैब स्पेस आ गया, यहाँ पे सिंगल स्पेस था, यहाँ पे टैब स्पेस आ गया है अब. सो दिस इज \t/n printf and return 0. so back to the slide. Now let's see what are preprocessor directives. See, in easy words, preprocessor directive compiler को instructions देता है कि जो फाइल मैंने इंक्लूड करी है या जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है वो आप कंपाइलेशन से पहले प्रोसेस कर लो. लाइक अगर आप हैश इंक्लूड यूज़ कर रहे हो, सो हैश इंक्लूड कंपाइलर को बोलेगा कि जो हेडर फाइल इंक्लूड है उसके फंक्शन डिफाइन कर दो कंपाइलर के लिए. हैश डिफाइन आपको बताएगा कि जितनी भी अकरेंसेस हैं, लाइक ये हैश डिफाइन 5 है, तो वो मैक्स की सारी अकरेंसेस को 5 से रिप्लेस कर देगा कंपाइलेशन के प्री प्रोसेसिंग स्टेज पर. सो ये कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, या मेनी मोर, बट दीज आर लाइक कॉमनली यूज्ड. हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड, इफ एल्स, elif.
नाउ मूविंग ऑन टू हेडर फाइल्स. सो हेडर फाइल्स का एक्सटेंशन होता है फाइल नेम डॉट एच. इसमें क्या होता है, इसमें आपकी फंक्शन डिक्लेरेशंस होती हैं. सो फंक्शन डिक्लेरेशंस कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव stdio.h, यू हैव math.h. तो अगर आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है जिसमें आप नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो, सो वो math.h लाइब्रेरी में है. इफ़ यू आर वर्किंग विद स्ट्रिंग्स एंड आपको स्ट्रिंग लेंथ चाहिए, तो उस फंक्शन का डेफिनेशन यू हैव इन string.h हेडर फाइल. ऐसे ही printf scanf का भी आपका हेडर फाइल्स में डिफाइंड होता है, बिकॉज मैंने सिर्फ यहाँ पे मैंने सिर्फ printf लिख दिया, बट printf का मतलब क्या है ये कंपाइलर को हेडर फाइल्स बताएंगी. सो stdio.h जो है वो printf का मतलब बता रहा है कंपाइलर को. एंड दो सिंटैक्स हैं, लाइक अगर ऑलरेडी यूजर कंपाइलर के पास सिस्टम फाइल है कोई, लाइक stdio.h math.h जो पहले से ही डिफाइंड होती हैं, सो इट इज़ हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स में फाइल नेम डॉट एच. यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन हेडर फाइल. In that case you will include it like hash include and then double quotes में file name. Alright, so this is what I have explained earlier, that including a header file is equal to copying a code, but we do not do it because it will be error prone and it is not a good idea to copy content of header file and source file. If we have multiple source file in a program, and it is a good hand practice कि जितने आपके constants हैं, global variables हैं, उनको आप एक हेडर फाइल में डाल दो एंड दो हेडर फाइल इंक्लूड कर लो. देन मूविंग ऑन टू कंपाइलेशन एंड इंस्टॉलेशन. सो कंपाइलर सी का देयर आर मेनी कंपाइलर्स. सो इफ़ यू वांट यू कैन विजिट दिस लिंक एंड यू कैन इंस्टॉल योर प्रेफर्ड कंपाइलर फॉर विंडोज़, लिनक्स और मैक. इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी डिफाइंड है. नाउ दिस इज़ द मेन पार्ट, दिस फ्लो चार्ट. व्हाट हैपन्स जब आप एक सी प्रोग्राम कंपाइल करते हो, आपने gcc फाइल नेम डॉट सी लिखा, ./a.out लिख दिया, प्रोग्राम चल गया, बट वो gcc से a.out तक कैसे जा रहा है प्रोग्राम, वो देखते हैं. आपके पास एक सोर्स कोड है .c, ये C++ के लिए भी सेम होते हैं स्टेप्स. सो आपके पास एक सोर्स कोड है .c का, लाइक sample.c इज़ माई फाइल. सबसे पहले वो जाएगा प्री प्रोसेसिंग स्टेज में. प्री प्रोसेसिंग स्टेज के बाद, प्री प्रोसेसिंग स्टेज में क्या होता है, आपके कमेंट्स रिमूव हो जाते हैं, मैक्रोस डिफाइन हो जाते हैं और हेडर फाइल्स इंक्लूड हो जाती हैं. सो लाइक इफ दिस इज़ योर कोड, तो प्री प्रोसेसिंग स्टेज क्या करेगा, आपका मैसेज का हर इंस्टेंस हेलो से रिप्लेस कर देगा, ये हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेगा एंड जितने कमेंट्स होंगे वो हटा देगा. एंड रिटर्निंग फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन होता है .i. तो प्री प्रोसेसिंग स्टेज के बाद ये .c से .i में चेंज हो जाती है फाइल. सो लेट्स सी कि प्री प्रोसेसिंग के बाद कैसा आपका कोड दिखता है. सो new.c, ये हम नॉर्मल टर्मिनल से करेंगे, लिनक्स टर्मिनल से. सी दिस इज़ माई कोड, इसमें कमेंट्स हैं, इसमें ये प्रोग्राम लिखा हुआ है. नाउ लेट्स सी. अब अगर आपको प्री प्रोसेसिंग स्टेज तक ही लाना है, gcc फाइल नेम डॉट सी भी यूज़ जब हमें पूरा एग्जीक्यूट करना होता है कोड, अभी हमें सिर्फ प्री प्रोसेस करना है. सो द सिंटैक्स इज gcc -e -o फाइल नेम डॉट आई स्पेस फाइल नेम डॉट सी. ऑलराइट, सॉरी, माई फाइल नेम इज़ new.c. सो new.c आपका एग्जिस्टिंग फाइल नेम है, सी प्रोग्राम है. new.i आपका वो नए फाइल का नाम है जिसमें आप स्टोर करना चाहते हो अपना प्री प्रोसेस्ड कोड. gcc इज़ द कंपाइलर and e and o are your extra arguments which you need to pass. So if I enter it, no such file. Alright, sorry, I was in the wrong folder. Yes, now it's fine. So same command. So now see, इसी फोल्डर में एक new.i करके फाइल बन गई है, राइट. अब हम इस पहले ये आप पे कोड देख लो. ये कोड था मेरा सी प्रोग्राम का, कमेंट्स हैं, फाइल्स हैं. अब मैंने इसको प्री प्रोसेस किया तो मेरा .i फाइल बना. अब इसने क्या किया है, ये इसने सारी इंक्लूड कर ली है जितनी भी रिलेटेड डिपेंडेंसीज होती हैं. जब इसके लास्ट में आप आओगे, ये इसने ये लाइक अभी हमने प्रोग्राम में यूज़ नहीं करा,
बट ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे आपके वेरिएबल्स, आपके डेटा टाइप सब डिफाइन कर देता है। सो अगर हम लास्ट में आए सो हमें अपना कोड दिखेगा। सो सी मेरा 1 सेकेंड, मेरा सी प्रोग्राम ऐसा दिख रहा था। ऑलराइट, कमेंट्स हैं, देन उसके बाद ये हेडर फाइल है, उसके बाद ये हैश डिफाइन है, प्रिंट एफ मैसेज है यहाँ पे। ऑलराइट, नोट दिस कि यहाँ पे प्रिंट एफ मैसेज है। न्यू डॉट आई में क्या हुआ, कमेंट्स रिमूव हो गए। ऑलराइट, कमेंट्स नहीं है। उसके बाद यू कैन सी हेडर फाइल्स नहीं रिटन है। उसके बाद सी हैश डिफाइन था, तो हैश डिफाइन ने क्या किया, मैसेज की जगह हेलो रिप्लेस कर दिया है सी। यहाँ पे हमारे मेन में मैसेज था MSG, ये हेलो से रिप्लेस हो गया। सो द कोड हैज़ बीन प्री प्रोसेस्ड, ये हमारा प्री प्रोसेस्ड कोड है। ऑलराइट, सो अब हमारा कोड प्री प्रोसेस हो चुका है। सो नाउ यू नो हेडर फाइल्स क्या करती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्यों होते हैं, एंड प्री प्रोसेस होने के बाद क्या होता है। अब प्री प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में क्या होता है, आपका जो ये आई है, डॉट आई फाइल है, ये डॉट एस में चेंज हो जाता है। ऑलराइट, सो अब आपका ये प्री प्रोसेस्ड कोड असेंबली कोड में चेंज हो गया। असेंबली लैंग्वेज इज़ मोर क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज। सो कंपाइलेशन में आपको एरर्स पता लग जाते हैं अगर आपके कोड में कोई होता है। उसके बाद नाउ लेट्स सी कि हमारी कंपाइल्ड फाइल हमारी होती है डॉट एस एक्सटेंशन में। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि कंपाइल्ड फाइल कैसी होती है। कंपाइल हम कौन सा करेंगे, प्री प्रोसेस्ड कोड कंपाइल करेंगे। सो हम ये न्यू डॉट आई कंपाइल करने वाले हैं। सो लेट्स सी, सो इसका कमांड होता है GCC -s एंड योर फाइल नेम डॉट आई। GCC कंपाइलर है, न्यू डॉट आई आपका फाइल नेम है प्री प्रोसेस्ड कोड का, एंड -s इज द आर्ग्यूमेंट। एंटर, यू सी न्यू डॉट एस फाइल बन गई है, ये है असेंबली कोड। अब ये असेंबली कोड अगर आप देखोगे तो लाइक बहुत अंडरस्टूड नहीं होगा। एंड इफ़ वी सर्च, सी मेन साइज डिफाइंड है आपका। उसके बाद स्ट्रिंग आपने हेलो यूज़ कर रखी है, एक स्ट्रिंग आपने हेलो वर्ल्ड यूज़ कर रखी है, फाइल का नाम न्यू डॉट सी है। ऑब्वियसली इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल टू अस बिकॉज असेंबली लैंग्वेज है। अब हम नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। अब हमारा ये असेंबली कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होके लिंकिंग स्टेज पे जाता है। ऑलराइट, तो वो फाइल डॉट एस से डॉट ओ एक्सटेंशन में चली जाती है, मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, सो अब असेंबल स्टेज पे क्या होता है, वी राइट अ प्रोग्राम एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्रोग्राम वो मशीन को समझ आता है। ऑब्वियसली मशीन कोड अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, बट लेट्स सी कि लिखता कैसा है। सो इसके लिए कमांड होती है GCC फाइल नेम डॉट, वी आर कंपाइलिंग द असेंबली कोड, सो डॉट एस एंड -o। आफ्टर दैट द न्यू फाइल, तो न्यू फाइल होगी हमारी न्यू डॉट ओ। सो दिस इज एग्जिस्टिंग फाइल योर असेंबली कोड, दिस इज द न्यू फाइल योर ऑब्जेक्ट कोड। ऑलराइट, सो नाउ सी ये हमारा मशीन कोड है। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा बिकॉज ऑब्वियसली मशीन कोड है। मशीन कोड के बाद आता है लिंकिंग स्टेज। लिंकिंग स्टेज क्या करता है, हमारी जितनी भी फाइल्स हैं उनको लिंक करता है, जो एक सेपरेट फाइल होती है जिसमें हमारी फंक्शंस डिफाइंड होते हैं। सो टू एक्सप्लेन इट, लेट्स सी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट फाइल थी डॉट ओ, उसमें प्रिंट एफ है, बट प्रिंट एफ का डेफिनेशन भी होगा एक ऑलरेडी प्री कंपाइल्ड फाइल में। तो हमारे एग्जिस्टिंग मशीन कोड को उस ऑब्जेक्ट फाइल से लिंक करने का काम लिंकर करता है, एंड उसके बाद ये मेमोरी में उसको लोड कर देता है सो दैट द फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड। सो लिंक करने के लिए फोल्डर, यस दिस इज द फोल्डर। सो अब हम लिंक कौन सी फाइल करते हैं, सो लिंक के लिए कमांड होती है हमारी न्यू डॉट सी -o न्यू। ऑलराइट, तो ये न्यू फाइल जो है हमारी ये भी ओपन नहीं होगी बिकॉज इट इज़ नॉट द एग्जीक्यूटेबल फाइल।
एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारी ए डॉट आउट बनती है जो हमारा कंपाइल्ड आउटपुट होता है. सो लाइक अगर हम पूरा कोड देखें, ये तो स्टेप वाइज था, अब मुझे पूरा देखना है तो उस बेसिक कमांड जो हम हर बार यूज़ करते हैं .c एंड जो आउटपुट फाइल बनती है दैट्स ए डॉट आउट, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ./a.out. सो ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया. सो ये टर्मिनल पे हमने करा है. नाउ we'll shift to code, VS Code. So this is your installation and compilation. Like ये चीज़ें obviously आपको एग्जाम्स में या कोडिंग में कभी काम नहीं आने वाली है as such, बट यू शुड नो कि जब आप कंपाइल करो तो पहले प्री प्रोसेसर के पास जा रहा है कोड, तो प्री प्रोसेस हो रहा है, देन कंपाइल हो रहा है, उसके बाद वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है एंड देन वो लिंक किया जाता है एंड देन वी गेट द एग्जीक्यूटेबल कोड. आफ्टर दैट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. अब सी में हम कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, जीसीसी पाइथन में हम इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं. फ़र्क क्या है? सो कंपाइलर आपका पूरा कोड एक बार में मशीन कोड में ट्रांसफ़र कर देता है, इंटरप्रेटर एक एक स्टेटमेंट करता है. ऑलराइट, अब बिकॉज ये पूरा कोड एक बार में करता है सो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है. ऑलराइट, बट एग्जीक्यूशन का टाइम कम होता है. इंटरप्रेटर इज़ जस्ट ऑपोजिट, इट टेक्स लेस टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड. However, overall execution is comparatively slow. कंपाइलर में हमने अभी भी देखा हमारा ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हो रहा है, सो मेमोरी ज़्यादा लगती है. इंटरप्रेटर में कोई ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता, हेंस इट्स मेमोरी एफिशिएंट. C++, जावा यूज़ कंपाइलर, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी यूज़ इंटरप्रेटर. These are some operators. So operators we can see arithmetic operator, plus, minus, multiply, divide, percentage. Plus is इंक्रीमेंट ऑपरेटर, -1 इज डिक्रीमेंट, लाइक वी राइट i++, तो उसका मतलब ये होता है i इज इक्वल टू i+1. अभी हम कोड करते टाइम ये देखेंगे. देन रिलेशन ऑपरेटर्स, इक्वल टू इज यूज टू कंपेयर वैल्यूज, लाइक a इज इक्वल टू b हमें लिखना है. इफ a इज इक्वल टू b वी हैव टू कंपेयर, सो वी राइट डबल इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. The logical operators and or not, ये जब आप कोड करोगे सो यू विल यूज़ दिस. उसके बाद ये बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, उसके बाद बिटवाइज ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया. देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन द वैल्यू. ए इज इक्वल टू बी, ए प्लस इक्वल टू बी मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस बी. ए माइनस इक्वल टू बी मतलब ए इज इक्वल टू ए माइनस बी. Similarly, a is equal to a into b, a is equal to a divided by b, a is equal to a percentage b. Okay, yes, और divide is like division आपका क्वेश्चन देता है, मॉड्यूलस या परसेंटेज साइन आपको रिमाइंडर देता है. So this is the difference between divide and percentage. Now format specifiers. So data types we have discussed in the previous video, जो फ्राइडे को सेशन भी हुआ था. So data types are char के लिए we use C, int के लिए we use D, double LF, float F. So these are the format specifiers. जब भी आपको कुछ प्रिंट करना है या आपको वैल्यू स्टोर करनी है, printf scanf में we use format specifiers. So these are the format specifiers. Now let's see, अब कोड के थ्रू एग्जाम्पल्स देखते हैं. This is the first code we have seen. Now statement and expression. Let's see. Statement क्या होता है आपका? स्टेटमेंट आर द कमांड्स और लाइन ऑफ कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड. तो कोई भी लाइन है जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दैट इज़ अ स्टेटमेंट. एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स सी. 1+2 इज़ अ एक्सप्रेशन, 1 into 2 इज़ एन एक्सप्रेशन. ये पूरा एक स्टेटमेंट है क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो सकता है. हम 1+2 की वैल्यू ए में असाइन कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ स्टेटमेंट. सिंपली 1+2 इज़ एन एक्सप्रेशन. ऑलराइट, आफ्टर दैट डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन. ये एक फंक्शन है, ये इसका डेफिनेशन है कि वो फंक्शन करेगा क्या. डिक्लेरेशन इज, हमने जस्ट डिक्लेयर कर दिया कि एक h है जो इन टाइप, एक वेरिएबल h है जो इन टाइप का होगा. वी हैव जस्ट डिक्लेयर्ड इट. उसके बाद वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं. सो एक मेथड ये है कि आप पहले उसको डिक्लेयर कर दो, उसके बाद उसकी वैल्यू डिफाइन करो. और व्हाट यू कैन डू इज़, आप उसको डिक्लेयर करते टाइम ही उसकी वैल्यू डिफाइन कर दो, लाइक आई हैव रिटन इंट f, वैल्यू इज़ 10. और आप 2-3 वेरिएबल्स जो एक डेटा टाइप के हैं वो एक साथ भी कॉमा डाल के आप डिफाइन कर सकते हो, लाइक
बी कॉमा सी कॉमा डी। यहाँ पे कुछ की वैल्यूज़ आप अगर नहीं लिख रहे हो, आप एक की वैल्यू भी लिख सकते हो, लाइक दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। लाइक बी सी एंड डी की वैल्यू 10 है। इनिशियली बी और सी की आपने कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाएगा इंट की। नाउ लेट्स ट्राई प्रिंटिंग दिस कोड। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो इसने क्या किया, ये एग्जीक्यूट हो गया, इसने ए की वैल्यू डाल दी, 1+2 की वैल्यू ए में डाल दी, एच को 2 कर दिया, डी को 10, एफ को 10 एंड वैल्यूज़ हमारी असाइन हो गई। इनको प्रिंट भी करा सकते हैं। सो प्रिंटिंग वैल्यूज़ विल सी नेक्स्ट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। अब लोकल वेरिएबल्स आर जो आपके एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ही होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स जो एंटायर प्रोग्राम के लिए होते हैं। सो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हैश इंक्लूड के बाद इंट डी इज इक्वल टू 10, तो अगर मैं इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं भी करूँगी सो इट डजेंट मैटर। एंड अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ डी, प्रिंट एफ में कैसे यूज़ करें ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वो भी हम नेक्स्ट कोड में देखेंगे। सो प्रिंट एफ डी एंड डी की वैल्यू मैंने प्रिंट करी, कोड कंपाइल किया। सो 10 ओके, आई हैव नॉट इंसर्टेड अ बैकस्लैश, इसलिए सेम लाइन में आ रहा है सी। सो 10 वैल्यूज असाइन, तो डी की वैल्यू 10 है। ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स आपको ऑल्सो मैं चेंज भी कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे डी की वैल्यू 5 कर देती हूँ तो वो पहले लोकल वैल्यू उठाएगा डिस्पाइट हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है। सो अगर हम दोबारा कंपाइल करें कोड, सो डी की वैल्यू 5 हो गई है क्योंकि उसने रिसेंट वैल्यू उठाई है जो उसके फंक्शन के लिए स्पेसिफिक है, डी की 5। मैं बिना डिफाइन करे भी लिख सकती हूँ, आई कैन जस्ट राइट डी इज इक्वल टू 5। सो 5 इज वैल्यू असाइन। लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स आपको तब ज़्यादा यूज़ आते हैं जब आप फंक्शन कॉलिंग यूज़ करते हो, जो हम 1-2 सेशंस बाद देखेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। नाउ लेट्स सी प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ क्या करते हैं। सी मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल्स। अब प्रिंट एफ क्या करता है, वो सिर्फ प्रिंट कर देगा आपकी स्टेटमेंट, लाइक आई हैव रिटन एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब यूज़र जब वैल्यू डालेगा तो उसको स्कैन करना है और हमें स्टोर करना है। सो व्हाट वी डू इज़, जैसी वैल्यू है वैसा फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंट वैल्यू है %d और एंड ए, एम्परसेंड ए इज़ यूज्ड कि जो भी आपको वैल्यू आएगी डी की उसको आप ए में स्टोर कर दो। अगर मैं ए को जैसे लेट्स सी बी, यस फ्लोट बी है, तो अगर मैं यूज़र को बोलूँ एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %f एंड b, क्योंकि b में स्टोर करना है। यही वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, सो आई कैन प्रिंट लाइक वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, जहाँ पे प्रिंट करनी है वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड कॉमा दे के a। यहाँ पे एम्परसेंड नहीं आएगा बिकॉज एम्परसेंड हम स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे थे। सो प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू %d, यहाँ पे वैल्यू आएगी एंड दिस इज़ ए, जो वैल्यू ए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी ए से। सो ये बेसिक तरीका है। हम 2 वेरिएबल्स एक बार में भी ले सकते हैं, ये जैसे मैंने प्रिंट करा रखा है। सो हैव रिटन वैल्यू ऑफ ए %d, वैल्यू ऑफ बी %f एंड उसी ऑर्डर में बाद में वेरिएबल्स लिख दिए। तो ए जो है वो ये इससे रिप्लेस करेगा क्योंकि ए पहले आ रहा है, एंड बी जो है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं बी और ए को रिवर्स कर दूंगी तो एरर आएगा कोड में, बिकॉज ए जो है वो मेरा इंटीजर टाइप है बट फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने एफ दे रखा होगा। लाइक इफ़ आई राइट दिस बी कॉमा ए, तो ये एरर देगा बिकॉज बी मेरा फ्लोट टाइप है और मैंने %d में डाल रखा है, एंड ए इंटीजर टाइप है और मैंने एफ में डाल रखा है। सो दैट्स आई विल यूज़ ए कॉमा बी। उसके बाद 2 वैल्यूज़ आप साथ में ले रहे हो, सो आप ये भी कर सकते हो, लाइक एक लेने की जगह आपने डाल दिया डी एंड ई, तो मैं डी की वैल्यू ऐसे डालूंगी स्पेस से, लाइक 5 + 6, 5 स्पेस 6। तो वो क्या करेगा, वो पहली वैल्यू उठाएगा %d, डी में डाल देगा, दूसरी वैल्यू उठाएगा ई में डाल देगा। ये लाइक 3-4 अगर एक लाइन में आपके पास स्पेस से डिफरेंस करता है वो,
सो अगर आपके पास 3-4 वेरिएबल्स भी आपको इनपुट लेने हैं, सो आप सिंगल स्कैनफ स्टेटमेंट से ले रखते हो एंड ये आपने प्रिंट करा दिया। सो एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। सो एंटर द वैल्यू ऑफ 8 10, ये एंटर द वैल्यू ऑफ बी 5, डी और ई मैंने डाल दिया 8 स्पेस 7। नाउ सी, अब कोड से कंपेयर करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, उसने प्रिंट कर दिया था ये। अब क्योंकि स्कैनफ है तो वो इनपुट का वेट करेगा, मैंने यहाँ पे \n नहीं लगाया तो वो उसी लाइन में इनपुट का वेट करेगा। तो मैंने 10 डाला तो उसने ए में स्टोर किया और उसके बाद उसने वैल्यू ऑफ ए प्रिंट कर दी 10। देन मैंने बी के लिए बोला, सो मैंने बी इनपुट लिया, उसने बी की वैल्यू स्टोर करी एंड उसने प्रिंट कर दी ए और बी की वैल्यू। उसके बाद व्हाट आई हैव डन इज, ये हमारी नेक्स्ट लाइन है, एंटर द वैल्यू ऑफ डी एंड ई। सो मैंने डाला वैल्यू ऑफ डी एंड ई, ये है, उसने ये डाला। तो मैंने दो साथ में इनपुट स्टोर कर रखे हैं, सो डजेंट मैटर। जब मैं प्रिंट करा रही हूँ तो वैल्यू ऑफ डी को 8 प्रिंट कर रहा है, ई को 7 प्रिंट कर रहा है। सो दिस इज हाउ input and printf and scanf statements work. अब coming to next, let's see. Okay, so now we have to start loops. So ये इतना अगर हो गया है, so as such अभी तक कुछ है नहीं, we have just seen कि input कैसे लेते हैं, उसको print कैसे कराते हैं। So मेन काम कोडिंग पार्ट आता है। अब कोडिंग पार्ट कैसे होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर, अगर ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, वेयर वी हैव टू मेक डिसीजन। सो 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर देयर, इफ एल्स एंड स्विच। सो लेट्स सी वन एट अ टाइम। इफ एल्स, अब इफ एल्स क्या करता है, इसका मेन मतलब ये है अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। यस, ऑल्सो हाउ टू प्रिंट अप टू स्पेसिफिक डेसिमल प्लेसेस। लाइक अभी ये कोड हमने जब रन करके देखा था, वन सेकेंड, अभी ये कोड जब हमने रन करके देखा था, सो हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी बी की, वो आ रही थी 5.00000006 डेसिमल प्लेसेस तक। व्हाट इफ, अब क्योंकि फ्लोट है तो डेसिमल प्लेसेस आएंगे, व्हाट इफ मुझे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 चाहिए, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट 0.3। जब मैं प्रिंट करा रही हूँ तो मैं वहाँ पे 0.3 लिख सकती हूँ। तो उसके बाद ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही प्रिंट करेगा। सो लेट्स कंपाइल इट अगेन। सी, अब मैंने 0.3 कर दिया तो उसने 5.000 ही प्रिंट किया। सो आई कैन यूज 2f 1f, जैसी वैल्यू चाहिए वी कैन यूज इट लाइक दैट। नाउ लेट्स मूव टू इफ एल्स। अब इफ एल्स में क्या होता है, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाना चाहिए। सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि नंबर इवन है या नहीं। सो मैंने इनपुट लिया ए और बी, ए इनपुट लिया, एक्चुअली बी पे हम काम नहीं कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल। उसके बाद प्रिंट कराया मैंने, देन स्कैन किया, वेरिएबल ए में स्टोर किया। इफ़ ए मॉड 2 इज़ 0, मतलब अगर ए को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, मॉड रिटर्न्स रिमाइंडर। दिस इज़ योर असाइनमेंट ऑपरेटर। डबल इक्वल टू इज हम कंपेयर कर रहे हैं। इफ़ आई राइट ए मॉड 2 इक्वल टू 0, तो ये 0 स्टोर कर देगा ए मॉड 2 में। बट मुझे ये नहीं करना है, मुझे कंपेयर करना है कि अगर मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। सो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है सो वो प्रिंट कर देगा कि ए इज़ इवन, अगर नहीं आ रहा तो वो प्रिंट कर देगा कि ए इज़ ऑड। सो अब इसको रन करके देखते हैं। I am entering 14, so A is even. If I enter 5, A is odd. Syntax if का if ब्रैकेट में भी राइट कंडीशन, ये मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती है। सो फिर हम यूज़ करते हैं हमारे एंड और नॉट ऑपरेटर्स। सो एंड और नॉट ऑपरेटर्स वी हैव ऑलरेडी सीन, ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये भी हम यूज़ करते हैं। सो जब आप कोड करोगे सो आपको आइडिया होगा, लाइक ये भी नीचे नेक्स्ट कोड में हम देखेंगे एंड और नॉट का। आफ्टर दैट
व्हाट इफ़ मुझे सिर्फ ये देखना है कि a mod 2 भी 0 होना चाहिए और a mod 4 भी होना चाहिए 0. सो लेट a mod 2 इक्वल टू 0 एंड a mod 4 इक्वल टू 0. मतलब वो 2 और 4 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए. सो देन इट विल प्रिंट a इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4. अब इसको कंपाइल करते हैं. सो what entering the value of a, so I'm entering 24. so a is a multiple of 2 and 4 क्योंकि a mod 2 भी ये आ रहा है and a mod 4 भी 0 आ रहा है. if I enter let's say 11, so a is odd क्योंकि अब वो else में चला गया. then we have nested if else. so nested if else मतलब नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टेड कोई भी आप अगर लूप यूज़ करते हो या कुछ भी यूज़ करते हो, सो नेस्टेड मीन्स वन इन अनदर. सो इट्स लाइक एक इफ उसके अंदर एक और इफ, देन मल्टीपल हो सकते हैं, ये आपके कोड पे डिपेंड करता है. सो दिस इज द कोड फॉर अ नेस्टेड इफ एल्स. इफ़ ए मॉड 2 इज़ 0, अगर ए इवन है तो हम चेक करेंगे कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं. इफ़ a mod 3 is also 0 तो वो a is even and multiple of 3. क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हुई तो वो इसमें आया, ये कंडीशन फुलफिल हुई तो वो इसमें आया. अगर ये नहीं हुआ तो else if a mod 5 is 0, else if a mod 7 is 0, else a is just even. मतलब अगर इनमें से कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ तो सिर्फ वो a mod 2 के अंदर आया, उसने बोल दिया a even है, else a is odd. else if क्या होता है, जब मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स होते हैं तो हम एल्स इफ यूज़ करते हैं. इट्स लाइक ये अगर ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ तो ये, एंड कुछ भी नहीं हुआ, सो द लास्ट इज एल्स. एंड एक इफ के साथ एक एल्स तो आता ही है. सो इफ वी कंपाइल दिस कोड, सो लेट्स एंटर द वैल्यू ऑफ a एज 12. a is even and a multiple of 3. कैसे? a mod 2 0 था, 12 mod 2 0 है. yes, इसके अंदर आया, उसने देखा a 12 mod 3 भी 0 है तो उसने ये प्रिंट कर दिया एंड आफ्टर दैट वो लूप के बाहर आ गया. दोबारा से ट्राई करते हैं. लेट मी नाउ एंटर 10. 10 mod 2 0 था, yes, फिर 5 के साथ हुआ तो उसने else if में चला गया, वो इसमें नहीं आया क्योंकि 10 mod 3 is not 0. What if I don't use an else? अगर मैं एक if बिना एक else के यूज़ कर रही हूँ, ये भी पॉसिबल है. इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं else कंडीशन दूँ. आई एम जस्ट राइटिंग अगर वो इवन है तो ये फंक्शन हो, ऑड के लिए आई डोंट वांट एनी फंक्शन. तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन जस्ट कीप द else पार्ट एंड इफ आई कंपाइल द कोड नाउ एंड आई एंटर एन ऑड नंबर लाइक 13, तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि एल्स मैंने डिफाइन ही नहीं किया. इट विल जस्ट रिटर्न 0. अगर मैं एल्स इफ नहीं लिखती, एल्स 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 लिख देती हूँ सारे, सो लेट्स सी क्या होता है. एरर दे रहा है एक्सपेक्टेड. Why is it giving an error? Okay, so else से पहले इसको कोलन चाहिए at line 14. So you cannot use multiple else. अगर मैं ये कमेंट कर दूँ then it will work. Again an error expected. This is also a code block. This okay. This is also a code block. Okay, so else में हम कंडीशन नहीं लिखते हैं. that is why it is giving an error. So या तो वो mod 3 होगा या नहीं होगा. else just has no condition. So अब अगर मैं उसको करूँ and a dot out and if I enter a value 12, so वो इसमें जाएगा else this. तो अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस चाहिए, दिस इज लाइक येस और नो, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा.
बट अगर मुझे ये भी चाहिए कि 3 के लिए भी चेक करना है, मुझे 5 के लिए भी चेक करना है, देन मुझे 7 के लिए भी चेक करना है, और अदरवाइज मुझे सबके लिए डिफ़ॉल्ट रखना है ए इज़ इवन, सो देन आई हैव टू यूज़ एन एल्स इफ। अगर मैं सिर्फ एल्स यूज़ करती हूँ सो इट ईदर लाइक ये हो या ना हो, बट अगर मुझे चाहिए ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, एंड इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ, देन इवन प्रिंट हो जाए, सो देन आई हैव टू यूज़ एल्स इफ। So this is about if and nested if else. Now switch case. See. So what if we do not use else if? तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है तो हमें else if यूज़ करना पड़ेगा. Now see. अब दिस इज़ अ प्रोग्राम जहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि अगर a 1 है तो मैं प्रिंट कर दूँगी a इज़ इक्वल टू 1. If a is 2 I'll print a is 2, if a is 3 I'll print a is 3, 4 के साथ 4, और else I'll print in default case, like कुछ भी नहीं हुआ so default value. अब yes, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, like अभी तक हम ऐसे लिख रहे थे, but I have not written it here because सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है. तो अगर एक ही स्टेटमेंट है so we can do it like this, बिना कर्ली ब्रेसेस के भी we can work. बिकॉज जब आपका कंपाइलर आता है इफ़ के बाद तो वो पहली लाइन तो देखेगा ही देखेगा. अगर मैं यहाँ पे 2 लाइन लिख देती हूँ, printf हेलो, तो क्या होगा आपका, वो ये तो इफ़ में काउंट करेगा बट वो हेलो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर देगा. वो इट विल बी लाइक दिस. उसका मतलब ये हो जाएगा अगर आप नहीं करते हो, आप अगर एक ही लाइन लिख रहे हो, मल्टीपल लाइंस लिख रहे हो विदाउट अ कर्ली ब्रैकेट, सो आपका कोड ये, इसका मतलब ये होगा. एंड इसके लिए फिर एक इफ़ नहीं होगा. यू कैन नॉट यूज़ एन एल्स इफ विदाउट एन इफ स्टेटमेंट. सो अगर आपको स्टेटमेंट देना है तो बीच में कुछ और स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए. अगर मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ देन इट्स फाइन बिकॉज एल्स इफ के लिए एक एल्स है. सो दैट इज़ वाई अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है आपके कंडीशन में, सो यू कैन skip these curly braces. Now let's start. So this is a simple कि अगर a 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, अगर a 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा. So I will enter the value of a as 4. So it has printed a is equal to 4. वो इस else if में आया. अगर मैं a की कोई और भी वैल्यू डालूँ, 10 डाली मैंने, तो इन डिफ़ॉल्ट केस क्योंकि 1 2 3 4 के लिए था, कोई कंडीशन मीट नहीं हुई तो उसने डिफ़ॉल्ट केस प्रिंट कर दिया. मैं अगर ये else स्किप कर देती हूँ, मैं नहीं लिखती, सो व्हाट विल इट डू, मैंने अब 10 डाला, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने टर्मिनेटिंग कंडीशन या एल्स कंडीशन डिफाइन ही नहीं की है. नाउ लेट्स सी इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, बिकॉज यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं एक ही वेरिएबल की वैल्यू कंपेयर कर रही हूँ. अगर 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है. तो यहाँ पे वी हैव अनदर स्टेटमेंट एज वेल विच इज़ नोन एज स्विच स्टेटमेंट. सो स्विच स्टेटमेंट हम देखते हैं. सो दिस इज अ स्विच स्टेटमेंट. स्विच स्टेटमेंट में हमने क्या किया, हमने a इनपुट लिया एंड वी राइट स्विच a. केस 1, केस 1 मतलब इफ़ a इज इक्वल टू 1, सो दिस इज लाइक केस, एंड यहाँ पे हम वो वैल्यू लिखते हैं जिससे हमें कंपेयर करना है. सो केस 1 इफ़ a इज इक्वल टू 1 प्रिंट ये. इफ़ केस 2 लाइक इफ़ a इज इक्वल टू 2 प्रिंट दिस. इफ़ a इज इक्वल टू 3 प्रिंट दिस. इफ़ a इज इक्वल टू 4 प्रिंट दिस. डिफ़ॉल्ट लाइक जैसे हम इफ़ एल्स में एल्स यूज़ कर रहे थे वहाँ एग्जैक्टली सेम हम स्विच में डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं. तो डिफ़ॉल्ट मतलब अगर इसमें से कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं हुआ सो ये डिफ़ॉल्ट में जाएगा. डिफ़ॉल्ट में विल प्रिंट एंड डिफ़ॉल्ट केस. सो नाउ वी कंपाइल दिस. आई एम एंटरिंग a इज़ 4, तो उसने प्रिंट कर दिया a इज़ 4. इफ़ आई एंटर a इज़ 10, तो वो डिफ़ॉल्ट केस में. 1 second, compile. I am compiling it again. So if a is 4 it has printed a is 4. If I am entering a is 10, तो डिफ़ॉल्ट केस में चला गया वो यहाँ पे. What if we do not use break statements? Okay, so you must have noticed कि मैंने हर उसके बाद break statement लगा रखा है. क्यों? Because what I want is अगर वो एक कंडीशन मीट करता है
तो वो बाकी किसी केस के लिए चेक ना करे. सो ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू कम आउट ऑफ अ लूप और अ कोड ब्लॉक. सो यहाँ पे क्योंकि स्विच है तो वो स्विच से बाहर आ जाएगा. वट इफ़ आई डू नॉट यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट, सपोज मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया, तो वो मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया एंड इफ आई कंपाइल इट, सो आई एंड ओके सॉरी, सो अगर मैंने ए की वैल्यू डाली 4, तो वो 4 में जा रहा है बिकॉज सॉर्टेड चीज़ है. बट अगर मैं 1 डाल दूँ तो क्या होगा, बिकॉज मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया है. सो मैं एंटरिंग 1. अब उसने क्या किया, उसने ये तो प्रिंट किया ही, बट वो स्विच के बाहर नहीं आया, वो 2 में चला गया. 2 का स्टेटमेंट उसने प्रिंट कर दिया. अब 2 के बाद क्योंकि ब्रेक लगा है तो उसने और कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करा. मैं सारे ब्रेक स्टेटमेंट्स अगर हटा दूँ तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, \n ऐड कर देते हैं सो दैट इट्स मोर रीडेबल. आई हैव एंटर्ड ए इज 1. सी, ब्रेक नहीं था तो उसने सारे केसेस प्रिंट कर दिए. सो इसका मतलब तो स्विच का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. इफ एल्स में तो वो अपने आप ही इफ एल्स में बाहर आ जाता है, बट स्विच में हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ता है, बिकॉज अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो सारी चीज़ें प्रिंट कर देगा एंड फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ. सो दैट इज़ वाई अ ब्रेक स्टेटमेंट इज़ नीडेड. सो दिस इज़ डन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फॉर लूप. ओके, फॉर लूप बहुत यूज़ होता है, लाइक एवरी कोड में आप कहीं ना कहीं फॉर लूप लगा दोगे. सो फॉर लूप देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद फॉर लूप. ये एक प्रोग्राम है फॉर लूप का. सो सिंपल, ए की वैल्यू मैंने इनपुट करी, स्टोर करी स्कैनफ से. नाउ ये फॉर लूप है मेन हमारा जो हम देखेंगे अभी. दिस इज़ द इनिशियलाइजेशन कंडीशन. दिस इज़ द कंडीशन जो जब तक फुलफिल हो रही है तब तक हमारा फॉर लूप चलेगा. एंड दिस इज़ द इंक्रीमेंट, या हमें आई कैसे चेंज करना है, स्टेप्स क्या होंगे हमारे आई के. आई इज़ द लूप इंडेक्स जिस पे हमारा लूप रन करेगा. लाइक अगर नॉर्मली भी आप कुछ रेपिटेशन कर रहे हो, सो वो रेपिटेशन आप किसी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे काउंट करते हो. सो सी प्रोग्रामिंग के लिए वो क्राइटेरिया इज लूप इंडेक्स. कोई भी वेरिएबल हो सकता है. आई हम स्पेसिफिक इंडेक्स है, सो आई हम यूज़ कर लेते हैं जनरली. सो अब स्टेप्स बता देती हूँ. फर्स्ट स्टेप इज़ वो चेक इनिशियलाइज कर देगा आई को 0 से. सेकंड, वो चेक करेगा हमारी ये कंडीशन मीट हो रही है कि नहीं. उसके बाद वो अगर मीट हो रही है तो वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा. या यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं. यहाँ पे आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट भी आ सकती हैं. उसके बाद वो आई एक ऐड कर देगा. सो आई प्लस प्लस मतलब आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. आई की वैल्यू 1 इंक्रीज कर देगा. वापस वो चेक करेगा ये कंडीशन हमारी मीट हो रही है कि नहीं. इफ़ यस तो वो ये एग्जीक्यूट कर देगा हमारा कोड. उसके बाद वो फिर एक आई इंक्रीमेंट कर देगा, फिर वो चेक करेगा, उसके बाद वो फिर एग्जीक्यूट कर देगा. सो द स्टेप्स गो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. सो इसको एक बार रन करके देखते हैं, देन हम एनालाइज करेंगे कोड. सो आई एम एंटरिंग 5. सी, ए की वैल्यू 5 डाली, आई इज इक्वल टू 0, आई 0 से स्टार्ट हुआ. इफ़ आई इज़ लेस देन ए तो 0 इज़ लेस देन 5. येस, उसने प्रिंट कर दिया वैल्यू ऑफ आई 0. आई इज इक्वल टू 1, अब आई ऐड हो गया आई में. 1 इज़ लेस देन 5. येस, तो उसने ये प्रिंट कर दिया. फिर एक आई प्लस हो गया, सो आई इज़ नाउ 2. 2 इज़ लेस देन 5. येस, उसके बाद उसने ये प्रिंट कर दिया. आफ्टर दैट 3 हुआ, 3 भी लेस देन 5 है. 4 हुआ, 4 इज़ लेस देन 5. जैसे ही आई 5 हुआ, 5 इज़ नॉट लेस देन 5, 5 इज़ इक्वल टू 5. सो वो इस लूप से बाहर आ जाएगा. सो अगर मुझे 5 भी प्रिंट कराना है, सो आई हैव टू राइट आई इज़ लेस देन इक्वल टू ए. अब अगर मैं इसको रन करती हूँ, सो नाउ इट विल प्रिंट 5 एज वेल. सो नाउ लेट्स सी कि अगर हम ये कंडीशन चेंज करें तो क्या क्या कैसे लूप वर्क करता है. सो मैंने आई माइनस माइनस कर दिया. मैं आई ए से स्टार्ट करूँगी एंड आई वांटेड टू रन जब तक आई जो है हमारा
वो ग्रेटर देन है 0 के। जब तक वो 0 से बड़ा है तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। सो आई कंपाइल इट। मैंने a की वैल्यू डाल दी 5। तो अब क्या हुआ, i इज़ इक्वल टू 5, i इज़ ग्रेटर देन 0, येस, मेरा प्रिंट हो गया। i माइनस होके हो गया 4, 4 इज़ ग्रेटर देन 0, येस, फिर प्रिंट हो गया। सो इट इज़ प्रिंटिंग टिल 1। जैसे ही 1 के बाद i माइनस माइनस मतलब 0, i इज़ ग्रेटर देन 0 फॉल्स हुआ बिकॉज i इज़ इक्वल टू 0 नाउ, फॉल्स हुआ, लूप के बाहर आ गया। सो यू कैन ऑल्सो पुट इट लाइक i इज़ इक्वल टू लाइक i प्लस 10। तो ये 10 के डिफरेंस पे चलेगा। आप मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस डाल सकते हो। सो डिपेंड्स कि आप कैसी प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हो। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है द डिफरेंस बिटवीन i प्लस प्लस एंड प्लस प्लस आई। ये बहुत कॉमन इशू है जब हम कोड करते हैं। सो हमें कभी कभी ये वैल्यूज़ देखनी होती है। सो सी, मैंने i को 10 किया एंड j इज़ i प्लस प्लस। i प्लस प्लस क्या करता है, पहले ये i की वैल्यू j में असाइन करेगा और उसके बाद i प्लस प्लस कर देगा। ऑलराइट, सो इट इज़ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। पोस्ट फिक्स मतलब बाद में। सो पहले i को j में असाइन करा एंड फिर एक ऐड कर दिया। सो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, सो लेट्स सी, i पहले प्रिंट हो रहा है तो हमारा i तो उसने इंक्रीमेंट कर दिया। सो i तो हमारा 11 हो जाएगा, बट j की जो वैल्यू है वो 10 रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले इसने i की वैल्यू j में डाली, मतलब पहले j 10 हुआ एंड उसके बाद उसने i इंक्रीज कर दिया 11 में, पोस्ट फिक्स। दोबारा से अब देखते हैं, i को 10 किया, प्लस प्लस आई इज़ प्री फिक्स। पहले ये i को ऐड करेगा तो सेम इशू, इसने i को 11 किया, उसके बाद ये j में असाइन करेगा तो j भी 11 हो जाएगा। लेट मी रिपीट इट अगेन। सी, i प्लस प्लस इज पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। पहले ये j में वैल्यू डालेगा तो j 10 हो गया, उसके बाद एक वैल्यू प्लस करेगा, सो i 11 हो गया। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में पहले वो इंक्रीमेंट करेगा तो i 11 हुआ, उसके बाद वो j में डालेगा तो j भी 11 हो गया। इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। सी, i 11 j 10 एंड i 11 j 11। सो जो आउटपुट हमने सोचा था वैसा ही आया है। सो दिस इज पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। सो प्लस प्लस आई एंड i प्लस प्लस आर डिफरेंट थिंग। अब हम आते हैं नेस्टेड फॉर लूप में। नेस्टेड इफ एल्स की तरह देयर इज नेस्टेड फॉर लूप एज वेल। फॉर के अंदर फॉर के अंदर आप इफ़ भी डाल सकते हो, आप इफ़ के अंदर फॉर डाल सकते हो। वट एवर कॉम्बिनेशन योर प्रॉब्लम रिक्वायर्स यू कैन यूज इट एज लाइक इट। आफ्टर दैट अब सी, आई हमारा इस पे चल रहा है। आई के अंदर मैंने एक और इंडेक्स ले लिया j, और फिर मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ। सो प्रिंट करा के फिर हम एनालाइज करते हैं। और लेट मी से 5। ओके, सो ये काफ़ी बड़ा हो गया, कोई छोटी वैल्यू लेते हैं कि लेट मी से 3। या दिस इज फाइन। i इज इक्वल टू 0, येस, i इज लेस देन a, i 0 इज लेस देन 3, येस, तो वो इसमें आ गया। j इज़ 1, 1 इज़ लेस देन 3, येस, तो दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं। तो उसने i प्रिंट कराया, i था हमारा 0, j था 1, तो हमारा i 0 प्रिंट हुआ, j 1 प्रिंट हुआ और i प्लस j 1 प्रिंट हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट करा रखा है। अब सबसे पहले तो j ऐड होगा, पहले ये लूप चलेगा। तो अभी j था 1, अब j इंक्रीमेंट हुआ 2, 2 इज़ लेस देन 3, येस, वापस से प्रिंट हुआ। i अभी भी 0 ही है, रिमेंबर दिस। पहले सबसे अंदर वाला लूप पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद बाहर वाले लूप में कंट्रोल जाएगा। सो अभी j 1 था, 1 लेस देन 3, उसने ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी प्रिंट करा दी। अब j इंक्रीमेंट हो गया, j हो गया 2, 2 इज़ लेस देन 3, येस, वापस से प्रिंट हुआ। सी, j2, i अभी भी 0 ही है क्योंकि अभी हम बाहर वाले लूप में नहीं आए। वापस से इंक्रीमेंट किया तो अब j हो गया 3, 3 इज़ लेस देन 3 फॉल्स है बिकॉज 3 इज़ इक्वल टू 3, तो ये स्टेटमेंट अब वो बाहर आ गया। अब हमारा i एक ऐड होगा, सो अब i हो गया 1, 1 लेस देन 3, येस, वापस अंदर आया, j वापस से 1, 1 लेस देन 3, येस, तो इसने ये प्रिंट कर दिया। सी, यहाँ पे अब i की वैल्यू जाके 1 हुई है। क्यों? क्योंकि पहले हमारा पूरा अंदर का लूप एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद कंट्रोल बाहर शिफ्ट हुआ।
वापस से जे की वैल्यू एक ऐड होगी, J2 हो गया, तो आई की वैल्यू 1 ही रही, J2 हो गया। फिर बाहर वाले लूप में कंट्रोल गया, आई की वैल्यू हो गई 2, 2 इज़ लेस देन 3, यस। अंदर आया, अंदर उसने 1 के लिए लूप रन किया, तो ये हमारी आई की वैल्यू 2 थी, जे की वैल्यू 1। देन जे इंक्रीमेंट हुआ 2, 2 लेस देन 3, यस। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2। जैसे ही जे 3 हुआ, बाहर आ गया कंट्रोल, कंट्रोल बाहर आ गया तो आई 3 हो गया, आई अब 3 हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप के बाहर एग्जीक्यूशन आ गया। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी बेसिक नेस्टेड फॉर लूप, एंड ये बेसिकली हम पैटर्न्स में, मैट्रिक्स में, इन सब में यूज़ करते हैं। सो अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे लाइव सेशन में, देन विल सी कि पैटर्न्स वगैरह कैसे प्रिंट होते हैं फॉर लूप से। नाउ लेट्स सी वाइल लूप। नाउ वाइल लूप और फॉर लूप काफ़ी सिमिलर है, तो मैं दोनों को कंपेयर करके बताती हूँ। वाइल एंड फॉर लूप सेम ही चीज़ है, बस सिंटैक्स का फ़र्क है एंड थोड़ा सा आपका लूप का वो चेंज हो जाता है। राइट, सो दिस इज़ माय फाइल, ये है वाइल लूप। फॉर लूप में हम क्या करते थे, फॉर लूप में हम कंडीशन लिखते थे फॉर आई इक्वल टू 0 सेमी कोलन आई लेस देन ए आई प्लस प्लस, राइट। ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स था। वाइल लूप में सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है, ये कंडीशन पहले आ जाती है, फिर अंदर हम अपनी एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर हम इंक्रीमेंट लिख देते हैं और उसके बाद हम लूप बंद कर देते हैं, और ये हम स्टार्टिंग में इनिशियलाइज। फॉर का मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगा, जब तक आई लेस देन ए है तब तक इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो एंड आई को प्लस प्लस करते रहो। सो अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, सो इट विल बी लाइक वाइल आई इज लेस देन ए, आई प्लस प्लस करते रहो, बस आई तो 0 एक ही बार हो रहा है, ये इनिशियलाइज कंडीशन तो सिर्फ एक बार यूज़ होती है। तो इसको अगर मैं स्टार्टिंग में लिख दूँ, सो इसका मतलब क्या होगा, जब तक आई लेस देन ए है तब तक आई प्लस प्लस करते रहो, और जो अंदर यहाँ पे जो भी आपका प्रिंट है या कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट करते रहो, राइट। सो ये वाइल लूप है, इनिशियलाइज मैंने पहले ही कर दिया है। वाइल आई इज़ लेस देन ए, जब तक हमारी ये कंडीशन मीट हो रही है तब तक ये प्रिंट करो और आई को एक ऐड करते रहो। दिस इज़ वाइल लूप। सो फॉर से वाइल में कन्वर्ट करना इज़ वेरी इजी। लेट्स से 3, सो 0 1 2, आई 0 था, आई लेस देन ए 0 लेस देन 1, सॉरी 0 लेस देन 3, यस। प्रिंट किया, आई को 1 कर दिया, 1 इज़ लेस देन 3, यस। प्रिंट किया, आई को 2 कर दिया, 2 लेस देन 3, यस। प्रिंट किया, आई को 3 कर दिया, 3 लेस देन 3 फॉल्स, बाहर आ गया। सो दिस इज़ वाइल लूप। सो फॉर से वाइल में कन्वर्ट करने का मैं एक और बार बता देती हूँ। इनिशियलाइज पहले कर देते हैं, वाइल दिस कंडीशन इज़ ट्रू, आई प्लस प्लस करो या जो भी हमारी इंक्रीमेंट कंडीशन है वो, एंड जो भी हमारा कोड है वो। सो दिस इज़ वाइल लूप। ओके, सो व्हाट इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन ए एट द बिगनिंग। ये अभी जब हम वाइल और डू वाइल एक और लूप है, जब हम डू वाइल कंपेयर करेंगे देन विल सी। अब डू वाइल और वाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले हम सिंटैक्स का डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद हम कोड पे आएंगे। सी, इनिशियलाइज पहले कर दिया, इनिशियलाइज पहले कर दिया, सेम है। इसमें हम क्या करें, वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू डू दिस, इसमें उल्टा हो जाता है, डू दिस वाइल द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। वाइल कंडीशन इज ट्रू डू दिस, इसमें उल्टा हो जाता है, डू दिस वाइल द कंडीशन इज ट्रू। अब दोनों के उसमें फ़र्क क्या आता है, वाइल इज एंट्री कंट्रोल, ये लूप के अंदर आते ही कंडीशन चेक करता है बिकॉज पहले है, ये लूप ये एग्जिट कंट्रोल है, ये लूप के बाहर जाके कंडीशन चेक करता है। सो अगर मैं एक सिंपल एग्जीक्यूशन टर्म्स में बात करूं, अभी हम कंपाइल नहीं कर रहे हैं, तो अगर मैं आई को 1 कर रही हूँ एंड ये कंडीशन हमारी मीट नहीं हो रही है तो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि वो वाइल में जाएगा ही नहीं।
बट अगर यहाँ पे कंडीशन मेरी मीट नहीं हो रही है तो भी वो एक बार ये तो करेगा ही करेगा, क्योंकि कंडीशन हम बाद में चेक कर रहे हैं। सो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो या ना हो, डू वाइल लूप एक बार तो रन करेगा ही करेगा। ये नहीं वाइल लूप नहीं करेगा, बट डू वाइल एक बार तो रन करेगा ही। सो एक बार हम कंपाइल करते हैं कोड को। सो अभी हम डू वाइल कंपेयर कर रहे हैं। ऑलराइट, सो थ्री, तो डू वाइल का भी सेम था। एंड अगर मैं वाइल में, हमने अभी कंपेयर करके देखा था लास्ट कोड में कि सेम आउटपुट आ रहा था, क्योंकि कंडीशन मीट हो रही थी। तो अगर हमारी कंडीशन मीट हो रही है सो डजंट मैटर। व्हाट इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन ए, यहाँ पे अब हमें पता लगेगा कि डू एक बार तो रन हो ही रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आई को कर देती हूँ 10, यहाँ पे भी मैं आई को कर देती हूँ 10। तो पहले हम डू वाइल रन करके देखते हैं। एक प्रिंटफ डाल देती हूँ। ठीक है, तो डू वाइल में जब हमने प्रिंट किया, मैंने ए की वैल्यू डाल दी 3। अब 3 में क्या हुआ, डू दिस वाइल आई इज़ लेस देन ए। अब आई तो मेरा 10 था, ए की वैल्यू 3 थी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए था, बिकॉज 10 इज़ नॉट लेस देन 3, मेरी कंडीशन फॉल्स है। बट ये क्यों प्रिंट कर रहा है 10, बिकॉज उसने पहले तो ये एग्जीक्यूट किया, तो उसने 10 प्रिंट किया, उसने 11 कर दिया आई को। अब वाइल मेरा क्या चेक हुआ, 11 इज़ लेस देन 3, तो ये फॉल्स है, इसलिए सेकेंड राउंड में नहीं गया। बट डू वाइल फर्स्ट राउंड तो चलेगा ही चलेगा अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी है। यही चीज़ मैं वाइल में अगर करूँ, लेट्स सी, वाइल में मैंने आई 10 का रखा है। सो अगर यही चीज़ मैं नीचे कंपेयर कर रही हूँ, अगर यही चीज़ मैंने वाइल में करी, ओके सॉरी सेव नहीं हुआ था ये। सो डू वाइल का ही प्रिंट हो रहा है अभी। एक प्रिंट एफ यहाँ पे भी डाल देते हैं। ऑलराइट, एंड इसको सेव कर देते हैं। सो अभी सेव हो गया है। अब अगर मैं इसको रन कर रही हूँ, मैंने ए की वैल्यू डाली 3, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सी, एक डू वाइल में जब मैंने A3 डाला था, यहाँ पे जब मेरा A3 था तो कंडीशन फॉल्स थी, बट उसने एक बार प्रिंट करा दिया, क्योंकि वो पहले प्रिंट करा रहा है, कंडीशन बाद में चेक कर रहा है। तो अगर कंडीशन फॉल्स भी हो रही है तो एक बार तो मेरा प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही रहा है। वाइल में उसने क्या किया, पहले कंडीशन चेक करी, तो वाइल 10 इज़ लेस देन 3 फॉल्स है, तो वो लूप के अंदर ही नहीं गया। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। अगर आपकी कंडीशन मीट नहीं होती है तो डू वाइल में वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। वाइल में अगर कंडीशन मीट नहीं होती है सो नथिंग हैपन्स। सो दिस इज़ अबाउट वाइल एंड डू वाइल। अब हम जंप स्टेटमेंट्स में आते हैं। सो जंप स्टेटमेंट्स बहुत सिंपल है। दिस इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। पहले ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ते हैं। सी, ब्रेक एंड कंटिन्यू। पहली चीज़, कंटिन्यू हम सिर्फ लूप्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लूप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। थ्योरेटिकल डिफरेंस, कंटिन्यू स्किप कर देता है बट आपका लूप चलता रहता है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे फॉर लूप डाल रखा है, 1 सेकेंड, दिस इज़ नॉट नीडेड। अगर मैंने फॉर लूप में एक इफ एल्स लगा रखा है नेस्टेड, कि व्हाट आई वांट इज, अगर ये इवन है तो मैं चाहती हूँ कोड कुछ ना करे, तो कंटिन्यू में क्या होगा, मेरा वो नीचे का पूरा स्किप हो जाएगा एंड आई प्लस प्लस हो जाएगा। लाइक फॉर आई इज इक्वल टू 0, अगर इवन है तो कंटिन्यू मतलब आई प्लस प्लस, लूप इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यू कैन ओनली बी यूज्ड विद इन अ लूप। लूप वाइल हो सकता है, डू वाइल हो सकता है, फॉर हो सकता है। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक पूरे लूप से ही बाहर आ जाएगा।
मतलब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर रही हूँ, जैसे ही i15 होगा मेरा ये फॉर लूप ही ब्रेक हो जाएगा, वो सीधा यहाँ आ जाएगा। सी printf आउट ऑफ फॉर लूप। एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो आई वॉन्ट ए की वैल्यू लेट मी से 5 है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी हम छोटे नंबर के लिए अभी हम कंटिन्यू टेस्ट कर रहे हैं। सो कंटिन्यू में क्या हुआ, i1 था, इसमें नहीं गया वो, बिकॉज सॉरी जैसे ही i मेरा 0 था, i इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 5, यस, 0 mod 2 इज 0, यस, कंटिन्यू। कुछ भी नहीं हुआ, राइट, कुछ भी नहीं हुआ। i एक प्लस हो गया, i हो गया 1, 1 इज लेस देन 5, यस, 1 mod 2 इज इक्वल टू 0, नहीं, वो यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे भी नहीं गया, क्यों, क्योंकि i15 नहीं है, वो यहाँ पे आ गया। तो एल्स में उसने 1 प्रिंट कर दिया, वैल्यू ऑफ i इज़ 1। वापस ऊपर गया, i हो गया 2, 2 mod 2 इज 0, यस, कंटिन्यू, 2 पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट। फिर ऊपर गया, i हो गया 3, 3 पे उसने प्रिंट कर दिया i की वैल्यू। 4 हो गया, 4 में कंटिन्यू। जैसे ही 5 हुआ, 5 लेस देन, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, वो फॉर लूप के बाहर आ गया, आउट ऑफ फॉर लूप। सो हुआ क्या, इवन नंबर्स के लिए उसने कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर रखा था। ये आपका फॉर लूप में आप तब यूज़ कर सकते हो जब क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा करने की एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए आपका कुछ भी प्रिंट ना हो या कुछ भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। सो यू कैन यूज़ कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। अब हम आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट पे। सो लेट्स सी ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है। और मैं i की वैल्यू कर देती हूँ 5। सो व्हाट आई वांट, जैसे ही i की वैल्यू 5 हो वो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करे। मैंने i की वैल्यू डाल दी 6, सी 6 था, तो पहले 0 इज लेस देन 6, यस, 0 mod 2 कंटिन्यू, कुछ भी नहीं हुआ। i1 हुआ, 1 पे उसने प्रिंट कर दिया। i2 हुआ, कंटिन्यू। i3 हुआ, 3 प्रिंट कर दिया। जैसे ही 4 हुआ, कंटिन्यू। अब 5 होगा तो 5 में वो इस एल्सिफ में गया, उसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक मतलब वो लूप से बाहर आ गया, ठीक है। मैं एक और इनपुट लिख के दिखाती हूँ आपको। सो मैंने मान लो 7 डाली है, ठीक है। सी 0 के लिए कंटिन्यू, 1 के लिए उसने 1 प्रिंट कर दिया, 2 के लिए कंटिन्यू, 3 के लिए 3 प्रिंट कर दिया, 4 के लिए कंटिन्यू, 5 के लिए ब्रेक यूज़ हो गया, यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, ये प्रिंट हुआ ब्रेक, वो कंट्रोल फ्लो आपका यहाँ पे आ गया, आउट ऑफ फॉर लूप प्रिंट हो गया। अगर ये ब्रेक नहीं होता, अगर मैं ये ब्रेक यूज़ नहीं करती, तो वो क्या करता, 5 के बाद वो वापस 6 के लिए चेक करता, कंटिन्यू होता, और 7 आपका 7 पे वो बाहर आ जाता, क्योंकि 7 इक्वल टू 7 पे कंडीशन फॉल्स हो जाती। बट अभी आपका ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ हुआ, जैसे ही 5 आया उसने लूप ब्रेक कर दिया, कंट्रोल आपका बाहर आ गया फॉर लूप से। सो ब्रेक स्टेटमेंट आप इफ़ में भी यूज़ कर सकते हो, ब्रेक हमने स्विच केस में भी यूज़ करी थी जब हम स्विच के बाहर ला रहे थे कंट्रोल। सो फॉर लूप में अगर हम यूज़ करते तो हमारा लूप एग्जीक्यूशन वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। कंटिन्यू इज़ टू स्किप। सो आई होप ब्रेक एंड कंटिन्यू आर डन। अब हम आते हैं गो टू स्टेटमेंट पे। गो टू स्टेटमेंट कब यूज़ होता है, सी कंटिन्यू में हमने स्किप कर दिया, ब्रेक में हमने कंट्रोल फ्लो लूप के बाहर कर दिया। गो टू में हम कंट्रोल फ्लो किसी एक लाइन पे भेज सकते हैं, ब्रेक में तो वो लूप के बाहर आ जाएगा। सो लूप के सी ब्रेक में वो लूप के बाहर आया है, तो लूप के नेक्स्ट लाइन जो भी होगी फॉर के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर यहाँ पे 100 लाइन्स भी लिखी हैं तो भी कंट्रोल हमेशा यहीं पर आएगा। अगर मुझे चाहिए कि जैसे ही ब्रेक हो, मतलब जैसे ही ये कंडीशन मीट हो, कंट्रोल फ्लो सीधा इस वाली लाइन पर आए, लाइन 7 पर, लाइन 27 पर, 26 पर, तो मैं गो टू यूज़ करूँगी, बिकॉज आई वांट कंट्रोल फ्लो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आए, ये दोनों स्टेटमेंट्स भी स्किप हो जाए। सो गो टू स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं। इसमें क्या हुआ, स्कैन किया ए, अगर ए इवन है तो वो L1 पे चला जाएगा, अगर ए ऑड है तो वो L2 पे चला जाएगा। L1 में मैं प्रिंट करूँ ए इज़ इवन, L2 पे प्रिंट करूँ ए इज़ ऑड,
ये इसका सिंटैक्स है, गो टू L1 गो टू L2, एंड ये जो आपका लाइन होता है ये आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, L1 सेमीकोलन सॉरी L1 कोलन एंड देन आपका स्टेटमेंट। ऑलराइट, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। if a is 4 a is even, if a is 5 odd। सी 4 के लिए a mod 2 आया ट्रू, L1 पे आ गया, उसने इवन प्रिंट किया और रिटर्न 0, उसने मेन फंक्शन टर्मिनेट कर दिया और 0 रिटर्न कर दिया। जैसे ही ऑड हुआ वो L2 पे आया, उसने प्रिंट किया a is odd और उसने 0 रिटर्न कर दिया। सिंपल कंट्रोल फ्लो आपका एक स्पेसिफिक लाइन पर आ जाता है। अगर हम रिटर्न 0 यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करती, बिकॉज आपने अभी तक देखा होगा रिटर्न 0 हम ऐसे यूज़ करते हैं, लाइक पूरा कोड जब हो जाता है तो लास्ट लाइन पे करते हैं। उस केस में क्या होगा, अगर आपका ऑड आता है L2 आता है तो ठीक है, वो L2 प्रिंट करेगा एंड वो यहाँ आ जाएगा। बट अगर L1 आया तो L1 में वो ये प्रिंट करेगा, उसके बाद वो ये भी प्रिंट करेगा एंड देन रिटर्न 0 आएगा। सो लेट मी शो यू। सी इफ a इज इवन 4, सी अब क्या हुआ, a इवन था प्रिंट हो गया, a इज ऑड भी प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ गो टू के लिए है, अदरवाइज तो एक ये नॉर्मल स्टेटमेंट ही है प्रिंट एफ a इज ऑड, सो ये भी एग्जीक्यूट हो गई। दैट इज़ वाई अगर मैं रिटर्न 0 यूज़ करती हूँ तो रिटर्न 0 में जैसे ही L1 एग्जीक्यूट होगा वो प्रोग्राम टर्मिनेट करके 0 रिटर्न कर देगा, और L2 के बाद तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे ही बिकॉज लास्ट लाइन है कोड के। सो इन दिस केस अगर मैं एग्जीक्यूट कर रही थी तो मेरा सिर्फ a इज इवन प्रिंट हो रहा था। सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज रिटर्न 0। सो दिस इज़ अबाउट इट लूप्स। डिसएडवांटेजेस, येस, गो टू स्टेटमेंट हम यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज एक तो लॉजिक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप इतना ज़्यादा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स कर देते हो, आप एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पे चले जाते हो। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एनालाइज एंड वेरीफाई अ प्रोग्राम। गो टू की जगह हम ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे सिंपल सा था, अगर मुझे ए और इवन और ऑड प्रिंट कराना था तो मैं ये प्रिंट अभी तो एक ही लाइन थी तो मैं यहाँ भी लिख सकती थी, बट अगर कोई बड़ा लॉजिक भी है तो भी मैं इफ़ के अंदर लिख सकती हूँ, एल्स के अंदर लिख सकती हूँ। अगर मुझे स्किप करनी है, लाइक जैसे हम यहाँ कंटिन्यू में कर रहे थे, तो यहाँ कंटिन्यू की जगह इफ़ आई राइट गो टू, ये अगर मेरी लाइन है L1, दिस इज़ नॉट नीडेड। सो अगर मैं यहाँ पे लिख देती गो टू L1 तो वो क्या करता, यहाँ पे आ जाता और वापस फॉर लूप शुरू हो जाता। अब अगर मैंने कंटिन्यू लिखा था तो भी क्या हो रहा था, कंटिन्यू के बाद वो यहीं पे जा रहा था। सो इसलिए ऑल्टरनेटिवली हम ब्रेक और कंटिन्यू यूज़ करते हैं बिकॉज गो टू स्टेटमेंट से प्रोग्राम लॉजिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट इट, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द स्लाइड। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख लिए, लूप्स देख लिए, जंप स्टेटमेंट्स देख लिए। थैंक यू। सो नाउ एज एन एक्टिविटी एंड बिकॉज आप इतना कवर कर चुके, लाइक बेसिक सिंटैक्स आपको समझ आ गया होगा आई होप। सो हैकररैंक पे व्हेन यू गो इन सी, सो हैकररैंक बिगनिंग के लिए अच्छा होता है। यू कैन यूज़ कोडशेफ ऑल्सो, कोडशेफ, लीड कोड, वट एवर प्लेटफॉर्म यू आर कंफर्टेबल विद। बट बिगनर्स जो बिल्कुल स्टार्ट करें, आई वुड सजेस्ट कि आप हैकररैंक पे जाके इंट्रोडक्शन एंड कंडीशनल्स एंड लूप्स, देर आर अराउंड 10 क्वेश्चंस फॉर दिस, आप ये सॉल्व कर सकते हो बिकॉज इसमें वही टॉपिक्स है जो हमने अभी तक कवर किए हैं। पॉइंटर्स एंड फंक्शंस आप लीव कर सकते हो बिकॉज ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे फंक्शन कॉलिंग, एंड उसके बाद विल गेट टू पॉइंटर्स। अदरवाइज पैटर्न्स, बिटवाइज, फॉर लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सम, हेलो वर्ल्ड, प्लेइंग विद कैरेक्टर्स, ये सब हम कवर कर चुके हैं। सो यू कैन ट्राई दिस। एंड आज के सेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे विल डिस्कस इन द सेशन वी हैव ऑन सैटरडे और फ्राइडे। इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू ऑल, एंड द PPT एंड दिस C फाइल, देख जिसमें मैंने सारे प्रोग्राम्स लिखे हैं, दिस इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।